हॅलो. येस हा येस टेल बेटा. न्यूट्रिएंट म्हणजे पौष्टिक आहार असू शकतो. Very good beta. Yes, very rightly told by Nilesh. Yes, so whatever we हॅलो. are eating, yes. हॅलो. हाँ टीचर माझं नाव ओंकार आहे. अच्छा ओमकार है. Okay, okay. Sorry बेटा. So ओमकार has rightly told कि न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है? The things which we eat in our day-to-day life. ठीक है, that is what is called as a nutrient. Now when we categorize the nutrients, the things which we eat, they are of two categories, है ना? They are the macronutrients and the micronutrients. Macronutrients का मतलब क्या होगा? The things which we eat in large quantity, जो हम ज्यादा क्वांटिटी में खाते हैं. तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम ज्यादा क्वांटिटी में खाते हैं? Can anybody tell me? Yes? No one? So that is a rice, chapati. Yes? So all these things are what? They are the macronutrients. Carbohydrates, fats and protein. I hope you all must be knowing about these three categories: carbohydrate, fat and protein. So this carbohydrate, fat and protein are considered as macronutrients. All of you note down. All of you note down. Macronutrient का मतलब क्या होता है? Macro means ज़्यादा, बड़ा. Nutrients. So the things which are eaten in large quantity are called as a macronutrients. ठीक है? Examples are carbohydrates, fats and protein. And what are micronutrients? Micronutrients which our body require in small quantity, like the vitamins and the minerals. Understood? So when we talk about the nutrition, it is getting and utilization of energy rich nutrients, that is food, by an organism. What does the food provide us? Obviously it provides energy for all the life activities. It is a material for our growth. It helps in maintaining our body temperature and it also repairs the tissues, है ना? क्योंकि बिना फूड के टिश्यूज भी रिपेयर नहीं होंगे, डेड सेल्स नहीं रीजनरेट होंगे. एनर्जी इज रिक्वायर्ड. आवर हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन विच इज पंपिंग कंटिन्यूसली. अगर वो 2 मिनट के लिए भी रुक जाएगा, उसको फूड नहीं मिलेगा, तो वी विल बी गॉन. सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑल दिस थिंग्स? So food is so important. Food and oxygen. ठीक है, food and oxygen are very very important. It has been told that कि हम बिना खाए 1 महीना रह सकते हैं, बट बिना पानी पिए हम नहीं रह सकते, है ना? बिना पानी पिए हम 1-2 दिन नहीं रह सकते. Why? So that much important is water also. So nutrients में water is also included. No doubt that water is not providing us energy. हमें energy provide नहीं करता है water. But water is also very important part of the nutrition. Understood this much? Okay. So nutrients में, as you can see on the screen, they are carbohydrates, fats and proteins. Fat को हम lipids भी कहते हैं. Please note down करो. Fat can also be called as lipid. So ये जो category आपको नजर आ रही है, they are the macronutrients. Vitamins and minerals are the micronutrients. Micronutrients and water is also very much important part. सिर्फ water के बारे में मैंने क्या बताया कि water does not give us energy, but without water the things cannot be done. Metabolism नहीं अच्छी तरह से हो पाएगा. Understood? Yes or no? Yes, miss. Yes, teacher. Okay beta. See, whatever you feel doubt ना बच्चा, you have to interrupt me and ask me. ठीक है? अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप मुझे बोलोगे तो मैं आपको रिपीट करके दूंगी. ठीक है? बट अगर आप नहीं बोलोगे तो आई विल कंसिडर दैट कि आपको समझ में आ गया. अगर कोई भी पॉइंट आपको समझना है, आपको नहीं समझ में आ रही, प्लीज आस्क मी. अच्छा, हे ये लिहून लेसन घेतलं चालेल का? काय बेटा? हे लिहून घेतलं तर चालेल का? हाँ बेटा, ये श्योरली श्योरली लिहून घे बेटा ओमकार. हा चालेल टीचर, लिहून घेतो मी. नाही लिहिलं तरी स्क्रीनशॉट घेतलं तरी चालेल बेटा.
You can also take a screenshot and whatever is important ना you can note down. अभी जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ ना उसको आप note down करो. Okay, Please note down करो. Carbohydrate is the complex form. Carbohydrate is the complex form. The simple form of carbohydrate is glucose. Simple form of carbohydrate is glucose. So write down. Simple form of carbohydrate is glucose. Carbohydrate is complex. Glucose is simple. Again, protein is complex. Simple is amino acid. Simple is amino acid. वैसे ही फैट लिपिड कॉम्प्लेक्स है, उसका सिंपल फॉर्म क्या है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल. फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल. दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. ये अच्छी तरह से याद रखो कि कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उसका सिंपल फॉर्म होता है ग्लूकोज. प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उसका सिंपल फॉर्म होता है अमाइनो एसिड. फैट या लिपिड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, इसका सिंपल फॉर्म होता है व्हाट? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. अंडरस्टूड? नोट डाउन किया सबने? yes, teacher. Good beta. Next important thing. Before going to the other slide, I will just explain you. There are 5 processes in nutrition. 5 process होते हैं न्यूट्रिशन के अंदर. So please note down, write down. There are 5 process in nutrition. 5 process in nutrition. Number 1, write down. Ingestion. 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 Wait, I will on that book page number. Ingestion. So see, you can see the spelling over here. Ingestion. See, I am moving the cursor. All of you can see. Ingestion का मतलब क्या है? In means inside. Gestion means taking in. So act of taking in food through mouth is called as ingestion. What it is? Act of taking in food through mouth is called as ingestion. Noted all of you? Act of taking in food through mouth is called as ingestion. Next heading डालो. Number 2, digestion. Digestion. Now listen to me properly. What do you mean by the term digestion? Digestion means जो भी हम कॉम्प्लेक्स चीजें खाते हैं उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना. ठीक है? जो भी हम कॉम्प्लेक्स चीजें खाते हैं उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने को हम डाइजेशन कहते हैं. जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, जैसे हमने राइस खाया, हमने चपाती खाया, दैट इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा तो वो किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज में. हमने प्रोटीन खाया, प्रोटीन में हमने जैसे कि फिश खाया, वी हैव ईटन एग, वी हैव ईटन दाल. यस, कोई भी दाल अगर हमने खाया तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके वो किस में बदल जाएगा? अमाइनो एसिड में. हमने कोई भी फैटी चीज खाई, जैसे कि चीज खाया, बटर खाया, घी खाया, फिर वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर किस में बदल जाएगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में. तो ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज अ डाइजेशन. बट द डाइजेशन इतना ही लिखना से आपको फुल मार्क नहीं मिलेगा. डाइजेशन का मतलब है the process, no doubt it is a process of conversion of complex into simple, but with the action of enzymes. What are enzymes? Can anybody tell me what are enzymes? What is enzymes? Anyone? किसी को पता है एंजाइम क्या होता है?
अच्छा, कैटलिस्ट सुना है किन्होंने, किसी ने नाम? कैटलिस्ट का मतलब पता है केमिस्ट्री में? एनीवन नो कैटलिस्ट? Yes, ma'am. यस बोलो बेटा। Catalyst increases the rate of reaction without taking part actually in reaction. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, करेक्टली आंसर। यस, सो कैटलिस्ट आर दी, Increase the power of the reaction. yes, they are speeding up the reaction, they are speeding up the reaction without itself undergoing the reaction, है ना? तो एंजाइम भी एक टाइप का कैटलिस्ट है, ऐसा कैटलिस्ट जो ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, ठीक है? तो इसीलिए हम एंजाइम्स को बायो कैटलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट का मतलब है the enzyme, the catalyst which are present inside the organism। बायो का मतलब ऑर्गेनिज्म और कैटलिस्ट का मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है? तो जो डाइजेशन का पूरा प्रोसेस है ना, वो बिना एंजाइम्स के अधूरा है। क्यों अधूरा है? विल गिव यू सिंपल एग्जांपल। जैसे आपने राइस रख दिया, चावल रख दिया, आपने चपाती रख दिया, टेबल पे रख दिया, अब आप सोचोगे कि वो डाइजेस्ट हो जाए, तो वो हो पाएगा क्या अपने आप डाइजेस्ट? नहीं हो पाएगा। होगा पर उसको थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब शायद 5 दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा, 7 दिन लगेगा, तब जाकर वो धीरे धीरे डिग्रेड होगा, है ना? बट हम सुबह खाते हैं, हमें दोपहर को भूख लग जाती है, हम दोपहर को खाते हैं, हमें शाम को भूख लग जाती है, हम शाम को खाते हैं, हमें रात को भूख लग जाती है। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज दिस एंजाइम्स दे आर स्पीडिंग अप द रिएक्शन and without itself undergoing the reaction. So enzymes is very 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 important part in digestion। बिना enzymes के कोई भी digestion अधूरा है। So all of you write down the definition of digestion from here itself. See, I'm moving the cursor. So it's a process of conversion of complex, complex का मतलब अभी आपको समझ में आ गया, non diffusible। जब कोई चीज सॉलिड फॉर्म में होती है तो वो डिफ्यूजन कैसे कर पाएगा? तो उसको लिक्विड फॉर्म में किया जाता है, तो वो डिफ्यूजेबल हो जाता है। अंडरस्टूड? डिफ्यूजेबल मतलब एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में जाना। तो सॉलिड चीज आप खाते हो ना, चावल खाते हो, राइस खाते हो, तो सॉलिड फॉर्म में रहता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके वो इसका लिक्विड फॉर्म हो जाता है, मतलब वो डिफ्यूजेबल फॉर्म में हो जाता है। तो क्या बता रहे हम डेफिनेशन डाइजेशन का? इट इज कॉम्प्लेक्स, इट इज नॉन डिफ्यूजेबल एंड नॉन एब्जॉर्बेबल ऑल्सो। ऐसी चीज को जब कन्वर्ट किया जाता है इनटू कॉम्प्लेक्स का सिंपल, नॉन डिफ्यूजेबल का डिफ्यूजेबल एंड नॉन एब्जॉर्बेबल का एब्जॉर्बेबल या फिर असीमेबल भी आप लिख सकते हो, with the help of enzyme, you have to continue the sentence, with the help of enzyme is called as digestion। Understood? So please write down, I am dictating, please write down। Digestion का definition, the process of conversion of complex comma non-diffusible and non-absorbable, complex comma non-diffusible and non-absorbable substance into simple, diffusible and absorbable, simple, diffusible and absorbable with the help of enzyme, with the help of enzyme। Okay, so I hope all of you have understood the process of digestion। Next step क्या होता है? अब डाइजेशन हो गया, समझो कॉम्प्लेक्स का सिंपल हो गया, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? अब ये जो सिंपल फॉर्म फूड है, ये अब ये जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म फूड है, जो लिक्विड फॉर्म में हो गया है, उसे हमारा ब्लड एब्जॉर्ब करेगा। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? कि जो सिंपल फॉर्म ऑफ फूड है, जो लिक्विड फॉर्म में फूड है, दैट इज बीन एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। सो एब्जॉर्प्शन, ठीक है? So what you are going to write down the definition of absorption? The simple form of food is absorbed into the blood. Simple form of food is absorbed into the blood.
डन। लिखा सबने? मैम प्लीज रिपीट वन। एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन is absorption of simple form of food. Absorption of simple form of food into the blood. Absorption of simple form of food into the blood. Next step is assimilation. Assimilation का मतलब है, सिंपल मतलब है उसका यूटिलाइजेशन। असिमिलेशन का मतलब क्या होता है? यूटिलाइजेशन। अब क्या होगा, हमारे ब्लड ने एब्जॉर्ब किया ये सिंपल फॉर्म ऑफ फूड, अब ये हमारे ब्लड के थ्रू हर एक ऑर्गन्स के पास जाएगा, हमारे लिवर के पास जाएगा, किडनी के पास जाएगा, इंटेस्टाइन के पास जाएगा, मीन्स हर एक पार्ट के पास जाएगा। और हर एक ऑर्गन्स इस सिंपल फॉर्म को क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे, एसिमिलेट करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। अंडरस्टूड? ठीक है। यस, सो अगेन आई एम रिपीटिंग, असिमिलेशन का मतलब क्या है? प्लीज नोट डाउन। यूटिलाइजेशन ऑफ सिंपल फूड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। यूटिलाइजेशन ऑफ सिंपल फूड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। अभी हर एक ऑर्गन नया नया सेल बनाएगा, क्योंकि हर एक ऑर्गन के अंदर रोज सेल्स डेड होते हैं। अंडरस्टूड? हाउ मेनी ऑफ यू लाइक बायोलॉजी बेटा? कोई ऐसा है जिसने जबरदस्ती लिया है बायो? एनीवन? ओके, next is the egestion. How many of you like, okay, how many of you like botany and zoology? पता है botany and zoology में फर्क पता है आपको? Botany means plant studies and zoology means animal studies. So how many of you like animal study? Zoology किसको किसको पसंद है? Anybody else? सिर्फ एक ही बच्चों को पसंद है और बाकी सबको बॉटनी पसंद है? यस और नो? सबको बॉटनी पसंद है बेटा? ये श्रद्धा? यस मिस। बोलो बेटा। बॉटनी। बॉटनी पसंद है, अरे वाह। ओके, व्हाट अबाउट अदर चिल्ड्रंस? आदित्य? देवेश? कशिश? बिस्मी? योर नेम इज बिस्नी बेटा? बोनी? अच्छा, देयर इज वन बोनी आल्सो। टीचर दोनों पसंद है। दोनों पसंद है, ओके गुड। सो लेट अस कम बैक टू द पॉइंट वंस अगेन। इजेशन का मतलब क्या है बेटा? इजेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड, ऐसा फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है उसको बॉडी से रिमूव करने को हम क्या कहते हैं? इजेशन। इजेशन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज डेफिकेशन। इजेशन को एक और नाम से जाना जाता है, कॉल्ड एज डेफिकेशन। अब ये सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए। See those children, those who are new over here, ठीक है? Bio is a very living subject. You should learn because you're going to learn about your own system. You're going to learn about your own digestive system, your own excretory system, your own reproductive system. Everything you're going to learn both in your 11th as well as in your 12th standard. So you should know about your own body. Okay, and therefore you should learn biology.
Okay. Plants की अगर हम बात करें तो obviously we should know we are getting the food from plants, so we should know what is the mechanism taking place in them, how they are autotrophs, how the photosynthesis take place. Okay. So everything, every knowledge will be given to you all in your 11th and your 12th. But when you go to the medical college, you will be learning the human physiology in depth. Okay. But for your level, we will be just touching the topic thoda little bit detail. Okay. So these are the 5 process of nutrition. क्या क्या बताया मैंने न्यूट्रिशन के कौन से 5 प्रोसेस हैं? इनजेशन, डाइजेशन, absorption, assimilation and egestion. Okay. Now next we have learned that vitamins and minerals are also required, but a very small quantity can be asked for MCQ. Vitamins and minerals are required in a very small quantity. Okay. Now we are going to learn in detail about the human digestive system. Okay. So I will share my screen once again. So human digestive system. All of you note down this part. All of you should note down in your notebook. Note down fast, and if you're done, please let me know. Done, teacher. हाँ बेटा, हो गया लिख के सबका? Yes, miss. सब हो गया लिख के? Okay. Yes. So what you are going to learn? You are going to learn about the digestive system. Our digestive system is divided into 2 categories: alimentary canal, which can also be called as a gut, and the glands. Associated glands का मतलब क्या होता है बेटा? The one which is secreting something is called as gland. जब कोई organ कुछ secrete करता है तो उसे हम gland कहते हैं. ठीक है? So alimentary canal में gut के अंदर आते हैं mouth, which will, there are 2 openings, as mouth as an opening and anus as an opening.
In between them, there is a canal called as a buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus. ये आपको सीक्वेंस में ही याद रखना है. फिर अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बात करेंगे बेटा, तो देयर आर डिफरेंट ग्लैंड्स. सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा बनाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हमारे स्टमक में है, गैस्ट्रिक जूस बनाता है, इंटेस्टिनल ग्लैंड जो इंटेस्टिनल जूस बनाता है, पैनक्रिया वो हम पढ़ेंगे, बहुत सारे पैनक्रियाटिक जूस बनाता है और बहुत सारे हार्मोन्स भी बनाता है. लिवर सिक्रेट्स बाइल जूस. अंडरस्टूड? So Yes. let us learn each one in detail. तो पहले हम एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे और फिर बाद में हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे. तो पहले सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल समझते हैं. Let us learn about the first one, that is a mouth. How you can explain mouth? How you can explain mouth beta? Mouth is a opening, है ना? Mouth is a opening which is guarded by the upper lip and the lower lip, है ना? Mouth is an opening which is guarded by the upper lip and the lower lip. Now, what is the function of upper lip and lower lip? It will prevent the falling down of food. It will prevent the falling down of food. Then, mouth के बाद एक चेम्बर ओपन होता है. जैसे अभी आप आ करोगे, आ करो सब लोग, तो आपको एक चेम्बर नजर आ रहा है ना, जहाँ पे आपका टंग है, आपका टीथ है. तो उस चेम्बर को हम बकल चेम्बर कहते हैं. क्या कहते हैं? Buccal chamber. Buccal chamber can also be called as buccal cavity. It can also be called as oral cavity or oral chamber. Understood? So आप देख Yes. सकते हो, oral cavity बोलो या oral chamber बोलो, buccal cavity बोलो या buccal chamber बोलो, सबका एक ही मतलब है. ठीक है? हमारे buccal chamber में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है? दांत है, teeth है, टंग है, यस, और हमारा सलाइवरी ग्लैंड है. फिर आप डायग्राम में देखो, वो किधर ओपन हो रहा है? फैरिंग्स में. फैरिंग्स कॉमन ओपनिंग है बेटा, हमारे रेस्पिरेटरी और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का कॉमन ओपनिंग है. फिर वो किधर ओपन होता है? इसोफेगस में. देन इट विल ओपन इनटू द स्टमक. फिर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आएगा लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आएगा एनस. और आप देख सकते हो कि स्टमक के इस साइड में इतना बड़ा सा ग्लैंड है विच इज कॉल्ड एज अ लिवर. आप लिवर में एक ग्रीन कलर का पार्ट भी देख पा रहे हो विच इज कॉल्ड एज अ गॉल ब्लैडर. सो लिवर क्या बनाता है? बाइल जूस बनाता है और उसे स्टोर कहाँ करता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रखता है. और आप स्टमक के नीचे, जस्ट नीचे आप देख सकते हो येलो वाला पार्ट विच इज कॉल्ड एज अ पैनक्रिया. So each and every part we are going to understand and learn. So let us learn the first. Mouth हमने समझ लिया है, अब हम buccal cavity समझते हैं. So you can see the photo. You can see this is the buccal cavity. This is called as a buccal cavity. Buccal cavity में हमारे पास दांत है, हमारे पास टंग है, ठीक है. और ये वाला रीजन आप देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज अ टॉन्सिल रीजन. तो ये टॉन्सिल इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सिर्फ दिखाने के लिए मैंने आपको बताया है. ये ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? पैलेट कहते हैं. क्या कहते हैं? पैलेट. तो हमारा बक्कल कैविटी अगर हम इसको बोलेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा इज मेड अप ऑफ पैलेट, नीचे वाला हिस्सा इज मेड अप ऑफ टंग एंड द साइड वॉल्स आर मेड अप ऑफ चिक्स. है कि नहीं? सो roof by palate, floor by tongue and side wall by cheeks. Side wall by cheeks. Understood? Okay. Yes. So palate is a hard part and posterior part is soft palate. पीछे वाला साइड, आगे का हिस्सा थोड़ा हार्ड रहता है और पीछे का हिस्सा पैलेट का थोड़ा सॉफ्ट रहता है. फिर हम बात करते हैं टीथ के बारे में. टीथ में हम और डिटेल में पढ़ेंगे. पहले हम टंग को ही एक्सप्लेन करती हूँ मैं. सो टंग, हाउ इट इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप. हाउ इज अवर टंग? इट इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप. अपना टंग बिना बोन का है. इट इज हाईली मस्कुलर एंड फ्लैशी. सिर्फ कैसा है? मस्कुलर है और फ्लैशी है. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने कभी टंग को ध्यान से देखा रहेगा तो टंग के ऊपर छोटे छोटे प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं.
our tongue shows small projections on the surface, and these projections are called as papillae. Papillae, papillae, which are the sensory taste receptors. Okay, these are the sensory taste receptors which helps in tasting the food material. You all know that tongue is a sense organ. ठीक है, understood? Yes. तो मैं वापस रिपीट कर रही हूँ अबाउट द टंग. क्या क्या बताया मैंने टंग का स्ट्रक्चर में. इट इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप. इट इज हाईली मस्कुलर एंड फ्लैशी ऑर्गन. नेक्स्ट पॉइंट, द सरफेस ऑफ टंग शोज मेनी स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज द papillae, which are the sensory taste receptors. Sensory taste receptor, which will help in identifying the different taste of the food. तो ये तो मैंने आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया, पर फिर अब हम उसके फंक्शन को समझेंगे कि टंग का फंक्शन क्या होता है. तो जब भी दांत कोई फूड को चबाता है, मैकेनिकल डाइजेशन करता है. दांत का काम क्या होता है बेटा? ग्राइंडिंग करना. जो भी अपने बड़े चीज को खाया है उसको छोटा 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 और एकदम छोटा छोटा टुकड़े में कन्वर्ट करना. यस. सो तो दांत ने तो ग्राइंडिंग का काम कर दिया, पर आप जस्ट आप खुद से करके देखो, आप बिना टंग के सहारे क्या आप स्वॉलो कर पाओगे फूड को अंदर? जस्ट ट्राई टू स्वॉलो विदाउट योर मूविंग योर टंग. कर पा रहे हो क्या? स्वॉलोइंग मतलब समझता है ना बेटा? स्वॉलोइंग मतलब निगलना, कोई चीज को निगलना. आप कोई चीज खा के देखो और आप देखो कि बिना टंग हिलाए क्या आप चीजों को स्वॉलो कर पाओगे? नहीं. नहीं. सो टंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्वॉलोइंग. तो अगर टंग नहीं होता तो हम स्वॉलो ही नहीं कर पाते, तो फूड कहाँ से डाइजेस्ट होता? सो है तो बड़ा छोटा सा चीज, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. सो स्वॉलोइंग मीन्स निगलना. यस, जिसको हम डीग्लूटिशन भी कहते हैं. स्वॉलोइंग को डीग्लूटिशन भी कहते हैं. प्लीज ये सारे टर्म्स को आप नोट डाउन करो. स्वॉलोइंग कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज डीग्लूटिशन. सो टंग का काम क्या है? डीग्लूटिशन कराना, स्वॉलोइंग कराना, इंजेशन कराना. और जो भी सलाइवा है, हाँ, ये टंग के वजह से ही वो फूड में मिक्स होता है. दांत चबाता है, सलाइवा आता है सलाइवरी ग्लैंड से, और टंग सबको फूड में मिक्स करते जाता है. अंडरस्टूड? Yes. एनी डाउट टिल हियर? एनी डाउट टिल हियर बेटा? No. And tonsils are also, yes, tonsils are also present. टॉन्सिल के बारे में डिटेल में आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे. चलो अच्छा, अब मैं आपको टीथ एक्सप्लेन करूंगी. अब टीथ एक्सप्लेन करने के पहले ही यू जस्ट सी द टीथ ओवर हियर. आपको क्या लगता है सारे दांत एक जैसे दिखते हैं क्या बेटा? नहीं. Yes. कैन यू टेल मी हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ वी हैव? अच्छा, कितने दांत होते हैं ये बताओ? 32. 32 दांत. सबके पास अभी भी 35 भी है किसी के पास? नहीं 2 टाइप है टीथ के. 2 टाइप है. अच्छा, कौन कौन से है बेटा बताओ? मिल्की टीथ एंड Very परमानेंट good. टीथ. शाबाश, वेरी गुड बेटा ओमकार. मिल्क टीथ कभी आता है? हम छोटे होते तब. अच्छा, 5-6 मंथ्स में आता है. ठीक है, ओके. तो मिल्क टीथ भी 32 ही रहते हैं? मिल्क टीथ भी 32 ही रहते हैं क्या? नहीं 25 होते हैं. 25 होते हैं क्या? नहीं बच्चा ओमकार, 20 होते हैं, 20. ठीक है, मिल्क टीथ जो टेम्पररी टीथ होते हैं ना, वो 20 होते हैं. कितने होते हैं? 20. ओके, आई विल एक्सप्लेन यू. सो ये तो आपने बताया अलग अलग टाइप के दांत है अपने पास. ये एक पॉइंट क्लियर हो गया. सेकेंड पॉइंट आप चीज देख सकते हो कि हमारा जो दांत है ना, वो हमारे जबड़े के अंदर है, हमारे गम्स के अंदर है. गम्स मतलब समझता है ना आपको? जबड़ा हमारा, मसूड़े हमारे मसूड़े के अंदर है, या हमारे जबड़े के अंदर है, हमारे जॉ बोन के अंदर है ना?
और क्या आप चीज देख पा रहे हो कि अभी आपने मुझे बताया कि 2 बार दांत आता है, एक बार बचपन में टूटा और फिर वापस आया, है ना। तो मैंने आपने मुझे 3 कैटेगरीज ऑफ टीथ बताया। सबसे पहले लेट अस डिस्कस कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीथ। सो टीथ हेल्प्स इन मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन का मतलब क्या होता है? ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग का काम करता है, चक्की के जैसे क्या करता है? पीसता है, फूड को पीसता है, ठीक है। तो दैट वर्ड इज कॉल्ड एज बायो में मैस्टिकेशन। द नेचर, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ को हम क्या कहते हैं? डेंटिशन। स्टडी ऑफ टीथ भी आप बोल सकते हो, स्टडी ऑफ टीथ विथ रिस्पेक्ट टू अरेंजमेंट एंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डेंटिशन। तो जो लोग दांत की पढ़ाई करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डेंटिस्ट। डेंटिस्ट कहते हैं, है ना। So human teeth is of 3 categories. We are heterodont, we are thecodont, and we are diphodont. Heterodont का मतलब क्या है? Okay, before starting with the heterodont, मैं पहले easy वाला फिनिश करती हूँ. Let us say why we are thecodont. पहले आप ये सब लिख लो, इतना लिखो बेटा, ये वाला स्क्रीन लिखो. Please write down. लिखा बेटा सबने? Yes. So write down, what is the meaning of thecodont first? Why our teeth is thecodont? Because our teeth is embedded in the jawbone. Because write down, because the teeth are placed in the jaw socket. आप देख सकते हो डायग्राम को, हमारा दांत हमारे जबड़े के अंदर है, हमारे जॉ बोन के अंदर है, इसीलिए देखो you can see the jaw socket also. So because our teeth is placed in our jaw socket, therefore we are thecodont. So write down. लिखा बेटा? Yes, miss. Next, Yes. why we are diphodont? Write down the meaning of diphodont. Because teeth appears twice in the lifetime. Because teeth appears twice in the lifetime. So please copy down this part. We are having 2 different types of teeth. Milk teeth, which is decidual teeth, and a permanent teeth. Decidual teeth is 20 in number, which develops at the month of 6 to 7. They are replaced by permanent teeth at the age of 6 to 7. And permanent teeth are 32 in number. So please note down.
Yes, written all of you, beta. You can see that in Yes. small children, what happened? Which teeth is not present? You can see in small children's premolar teeth is not there. We will be learning the types of teeth now. ठीक है, मैं आपको just अभी बता के दे रही थी. We will be learning the types of teeth now. Okay, we will go back. We will be learning the different types of teeth now. Why we are heterodont? You can see on the screen because we are having 4 different type of teeth. They are incisors, canines, premolar, and the molar. Incisors, canine, premolar, and molar. How we abbreviate it? Incisors by I, canines by C, premolars by PM, and molars by M. You can see the functions of the same. Incisors are used for cutting. Canines are used for tearing. इसलिए अगर आप lion, tiger को देखोगे तो उनका canines काफी बड़ा होता है because they are tearing the fleshes. Then premolars and molars are used for crushing the food material. Premolar and molar are forming the chick teeth and they are having a cups. You can see the cup-like structures. So जो small बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनके पास milk teeth होता है, उनके पास premolar वाला दांत नहीं होता है. अभी मैं आपको ह्यूमन डेंटिशन भी बताऊंगी कि कैसे ये अरेंज्ड होते हैं. तो लेट मी टेल यू अबाउट द डेंटिशन. डेंटल फॉर्मूला. परमानेंट टीथ. इंसीजर्स आर 2x2. 2x2 मतलब ये देखो, अगर मैं इधर एक लाइन ड्रॉ करूंगी, एक इधर बीच में लाइन ड्रॉ करूंगी, तो इंसीजर्स इस साइड 2 है, इस साइड 2 है, तो मैं क्या लिखूंगी? 2x2. कैनाइंस देखो, इधर एक है, इस साइड एक, राइट साइड एक है, लेफ्ट साइड एक है, तो 1x1. प्रीमोलर्स देखो, लेफ्ट साइड 2 है, राइट साइड 2 है, तो 2x2. प्रीमोलर्स देखो, यहाँ इस साइड 3 है और उस साइड भी 3 है, मतलब लेफ्ट और राइट साइड 3 है, तो 3x3. तो ऐसे इसको हम बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला. ठीक है. सो इंसीजर्स 2x2, कैनाइंस 1x1, प्रीमोलर्स 2x2 एंड मोलर्स 3x3. अगर हम उसे मल्टीप्लाई, ये अपना अपर सेट में है और वैसे ही सेम सेट हमारे लोअर जॉ में है. सो 16 + 16 = 32. जो मिल्क टीथ होता है उसके अंदर प्रीमोलार्स नहीं होता और मोलार सिर्फ 2 ही होते हैं. जो मोलार का जो एक दांत है ना, मतलब एक सेट जो है वो दांत, वो 18 ईयर्स में आता है. तो बहुत लेट आता है. जब तक अपने को अक्कल आ गई होती है, 18 साल में तो आ ही जाती है ना कम से कम अक्कल, 18 या 19 साल में, तो उस वक्त ये दांत आता है, इसलिए हम इसे अक्कल दांत कहते हैं, विजडम टीथ कहते हैं. ठीक है. So last 4 molar appears at the age of 18, so they are called as a wisdom teeth. So what you are going to note down? You will be note down the heterodont meaning. So there are 4 different types of teeth. So note down all this thing: incisors, canine, premolar, and molar. Write down. लिखा सबने इतना? Yes. Write down the dental formula now.
Yes, done beta. Yes. So understood all the points for the teeth. I will revise the PPT for the teeth once again. So we are heterodont because we are having 4 different types of teeth. We are diphodont because in the lifetime we have got 2 times teeth. We are thecodont because our teeth is embedded in the jawbone. So we have seen the 4 different types of teeth. We have seen how the teeth is embedded in the jaw socket. We have seen how we are diphodont. This one is the बच्चों का teeth, मतलब milk teeth का ये setup है और ये permanent teeth का setup है. 18 years में wisdom teeth आता है. And then lastly we have seen the dental formula. Now next topic is the pharynx now. What is pharynx? Pharynx is the common point. Pharynx is the common point for the digestive as well as the respiratory system. ये common passage है हमारे respiratory और हमारे digestive system के लिए. तो pharynx region में ना एक opening present होता है. आप देख सकते हो ये food यहाँ पे swallow के अंदर जा रहा है. आप देख सकते हो यहाँ पे एक opening है. इस opening को कहा जाता है glottis. क्या कहा जाता है? Glottis. ठीक है. और ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस. सो ग्लॉटिस के ऊपर है एपिग्लॉटिस एंड दिस एपिग्लॉटिस विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है. तो ग्लॉटिस के ऊपर क्या होता है? एपिग्लॉटिस. और एपिग्लॉटिस क्या काम करेगा? आप देख सकते हो इस एनिमेटेड फोटो में कि फूड बराबर हमारे इसमें जा रहा है. देखो ये वाला क्या है? दिस इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है. यू कैन सी दैट द फूड इज गोइंग इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड हियर द फूड इज गोइंग इन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दिस इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ठीक है. Yes. Pharynx के बारे में what you have to say that it is a common system for both the respiratory as well as the digestive system. ठीक है. Then it is the opening is called as glottis. And the glottis is been covered with a covering called as epiglottis. Okay. And then next what I've told you. What is the function of epiglottis? It will prevent the entry of food into the trachea or the respiratory system. Okay. Yes. Next is the esophagus. Esophagus is about 30 centimeter long tube. It is muscular tube. It will conduct the food into the stomach. Conduction का मतलब क्या होता है बायो में? Conduction का मतलब होता है passing on. So it will pass on the food. ठीक है. आप यहाँ से देख सकते हो pharynx से esophagus में आए, esophagus से stomach में जाएगा. तो ये सिर्फ pass on करेगा food को. So it will conduct the food into the stomach. Conduct का मतलब होता है pass on करना. आप देख सकते हो इसके अंदर esophageal sphincters present होता है. Sphincter का मतलब क्या होता है बेटा? जो बैक फ्लो नहीं कराता उसे हम स्फिंक्टर्स कहते हैं. ठीक है. सो स्फिंक्टर का काम होता है ओपन एंड क्लोज करना और बैक फ्लो नहीं कराना. सो इट विल कंट्रोल द ओपनिंग ऑफ esophagus into the stomach. And you can see that there are 2 types of muscles present over here, circular muscles and the longitudinal muscle. Circular and the longitudinal muscle will help in the contraction and relaxation of the esophagus. Understood? Yes. Yes, miss. Okay. So now homework for all of you is, देखो अभी मैं आपको टेक्स्ट बुक, सबके पास टेक्स्ट बुक है बेटा? Yes, miss. आपको होमवर्क क्या है बेटा? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तो आपने वो फ्लो टेबल लिखा. You will be writing about the mouth. See the text book all of you. You will be labeling this diagram. If possible label it. नहीं आएगा तो I will help you. You will be writing in detail about the teeth. In detail about the teeth. You will be writing about heterodont, thecodont, diphodont, everything you are going to write down.
You're going to write down the dental formula also. See, it has been given over here, dental formula. You will be drawing this diagram. All of you, you will be drawing this 14.1 ka diagram. In how many lines you are going to draw this diagram? Only and only in 7 lines, not more than that. If you are having textbook with you, in the tongue column, underline papillae. Underline papillae, which are the sensory receptors which are called as a taste bud. ठीक है? और फिर pharynx के बारे में जो अभी मैंने आपको explain किया, what I explained you about the pharynx, it's a common passage. You will be writing about the glottis, you will be writing about the epiglottis, and lastly you will be writing about the esophagus. Okay, one more important point for the teeth which is missing is the which I forgot to tell you is about the enamel. देखो, wait, हाँ? टीचर Yes, बेटा. आप होमवर्क व्हाट्सएप पे भेज रहे हो ना? क्या बच्चा? क्लासचा व्हाट्सएप आहे ना? हाँ. हॅलो, हाँ. त्यावर होमवर्क सेंड करणार ना तुम्ही? होमवर्क सेंड नाही, मी आता सांगते ना बेटा, तू नोट डाऊन करून घे आणि ते नंतर मला नेक्स्ट लेक्चरला दाखव व्हिडिओ ऑन करून. कळलं? ओके. हो. ठीक है. All of you have understood what I told you, whatever I have told you. मैंने आज जो भी पढ़ाया है